السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی امن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان سے ہے اور عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے زور دے۔ 2025 کو بین الاقوامی سال برائے امن قرار دینا خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ غزہ میں امن منصوبہ پاکستان کی کوششوں سے منظور ہوا اور مشرق وسطیٰ میں طویل جنگ بندی اور انسانی امداد ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے پائیدار امن، ترقی، موسمیاتی تبدیلی، عدم مساوات اور عالمی تعاون پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کا صاف و سرسبز ترقیاتی ماڈل عالمی مثال ہے۔ لاہور پولیس نے 2025 میں جوئے کے خلاف بڑے آپریشن کے دوران قمار باز گرفتار کی اور شہر کے 3607 مختلف تھانوں میں 908 مقدمات بھی درج کیے، جن سے 1 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد ہوئی۔ ڈی سی پی او لاہور نے جوئے کے اڈوں پر انٹیلیجنس بیسڈ ریڈز جاری رکھنے، آن لائن جوئے کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اور پروسیکیوشن کے تعاون سے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ پولیس نے جوئے سمیت تمام سوشل کرائمز کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی ہدایت پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں نے فرداً شکایات پیش کی۔ ایس ایس پی نے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات بھی جاری کیے۔ ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو سرزنش اور شو کوز نوٹسز بھی جاری کیے۔ ایس ایس پی نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں اور پولیس کے درمیان رابطے کو مضبوط کرنا اور میرٹ پر فوری انصاف فراہم کرنا ہے، جبکہ افسران کو کارکردگی بہتر بنانے اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت لیگل انسپیکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سینیورٹی، سروس سٹرکچر اور پروموشن کے امور زیر غور آئے۔ آئی جی نے کہا کہ لیگل افسران پنجاب پولیس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں یکساں پروموشن کے طریقہ کار پر مشاورت بھی کی گئی اور پنجاب پولیس کے لیگل سٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے ایس پی اور ڈی ایس پی لیگل سیٹیں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے تحصیل ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا اور ٹاؤن شپ ضیاء کالونی اور منہاج یونیورسٹی روڈ پر انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ایل ڈبلیو ایم سی کا عملہ جھگیوں کے انخلا کے بعد صفائی، گلی محلوں میں کوڑا اٹھانے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت اور شجرکاری کے اقدامات کر رہا ہے۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی کی بحالی، سڑکوں کو ملبے سے پاک کرنا اور صفائی کے اعلیٰ معیارات برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلین لاہور ویژن پر عمل جاری ہے۔ ساہیوال میں 1992 سے ناجائز قابضین سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 149 ہال میں موجود ہیں، میرے ساتھ جو متاثرہ شہری ہیں ان کا تعلق دنیا پور سے ہے۔ ساہیوال سے کوئی 150 کلومیٹر کی مسافت ہے ان کا جو علاقہ ہے۔ ان کی وراثت جو اراضی تھی اس پہ قبضہ کر لیا کسی ان کے عزیز نے۔ تو جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کا بڑا ایسا اقدام ہے جو آپ نے قبضہ مافیا کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا ہے، تو عام آدمی کو انصاف ملنا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اداروں کی بدبختی یہ ہے کہ پیرا فورس آتی ہے، قبضہ واگزار کراتی ہے، پٹواری، محکمہ مال، یہ تو متاثرہ لوگ جان سکتے ہیں یہ 1992 سے قبضہ ہوا ہے۔ یہ دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے حصول کے لیے، تو انہوں نے ہمت کر کے یہ قبضہ واگزار کرایا بذریعہ پیرا فورس اور مقامی پولیس جو تھانہ ڈیرہ رحیم ہے۔ ایس ایچ او نے بڑی کاوش کی ان کو قبضہ دلوا دیا۔ جیسے قبضہ واگزار ہوا تو یہ اپنے گھر چلے گئے، دوبارہ رقبہ ٹھیکے پہ دے کر گندم کاشت کر دی جو اپنے راگ کے ذریعے یا ٹھیکیدار کے ذریعے۔ تو گندم کاشت کرنے کے بعد اب کو 1.5 ماہ بعد جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کی اراضی پر، تو انہوں نے وہ گندم کی جو کاشت فصل تھی اس میں ہل چلا دیا۔ تو ایک تو یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ان کا موٹر سائیکل بھی چلا دیا، وہاں سے جو قیمتی سائیدہ درخت ہیں وہ بھی چوری ہونا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے دوبارہ کل اے ایس پی صدر سرکل کے پیش ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایس ایچ او ڈیرہ رحیم کو ہدایت کی کہ ان کو فی الفور انصاف فراہم کیا جائے۔ تو ایف آئی آر کے لیے رات یہ تھانے گئے ہیں، تو ایف آئی آر کا ان سے وعدہ ہو گیا ایف آئی آر ہو جائے گی، لیکن ایف آئی آر حل نہیں ہے۔
DPO साहिवाल, RPO साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल, जिस तरह हुकूमत पंजाब जो वज़ीर पंजाब ने इकदाम उठाया कब्जा माफिया के खिलाफ, तो आपकी जिम्मेदारी है साहिवाल जिला में कब्जा है ये, और ये जो परदेसी हैं बेचारे, ये ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो मजीद तफसील इनसे जानते नहीं की। कब्जा अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 1.25 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰ ਆ 2 ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ 7-8 ਮਰਲੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? 149 ਮਾਈਲ ਚ ਇਲਾਕਾ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਰਹੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1992 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ? कोई शायद नहीं ठेका कि सानू प्यार के दिलासे देंदे रहे, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, फसल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वालद साहब थे, हम कह नहीं सकते थे, यूं ही वालद साहब फौत हुए 2003 में। फिर हमारे को प्यार में बसे दिलासे देते रहे, हमारी कमज़ोरियाँ थी ना, खर्चे की वजह से नहीं आ जा सकते थे रोज़। फिर जब मरियम नवाज बीबी ने ये कदम उठाया ना, हमारे को पता लगा कि ये नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। हमने अल्लाह के आसरे पे दरख्वास्त दे दी वनडे करवाने के लिए, वनडे हो गए। जब भी हमारे वनडे हुए तभी मोहतरमा का जो ऑर्डिनेंस है वो जारी हो गया। हमने उनका सहारा लिया, महकमे के पास गए, उन्होंने हमारा कब्जा करवाया। ठीक है, आगे मूंजी लगी हुई थी उनकी धान। जब मूंजी लगी उन्होंने बोला कि यार इनको मूंजी काटने दो या पैसे भर दो। पैसे हमारे पास होते तो हम भरते थे, मूंजी कटवाते। हम तो किराए के लिए तंग हैं, तो मूंजी के खर्चा कहाँ से देते। चलो उनके बात पे इत्मीनाद किया। जब रकबा कुछ खाली हुआ, हमने कहा हमारा रकबा है, महकमा दुआ के दिया, हम हाल चलाते हैं। हमने उसमें हाल चलाया, तो पानी लगा रहे थे पीछे, कभी इधर को कसी से पानी ख़राब कर दिया, कभी उधर से, यानी 2-4 घंटे हमारा ये पानी का नुकसान किया। फिर हमने 15 पे कॉल की, वो आए, उन्होंने उठाया, गालबन 20 मिनट बाद वो पुलिस वालों ने उनको भी छोड़ दिया। सर हुण इस गल ते मतलब पुलिस तो भी गए हैं, पर्चे करवाए हैं, लेकिन पर्चे कोई अच्छा हल नहीं है। ASP साहब ते भी गए हैं, 1787 ते कॉल की थी आ, ते उन्होंने साड़ी दोबारा गंदम यानी वाहती आ, कब्जा करने की कोशिश की थी आ। लिहाजा साड़ी ते ही मोहतरमा दे गाड़ी अपील आ, परदेसी बंदे आ ना, ते साड़ी कोई जगह कि जिथे असीं 4 दिन अपना बह जाइए, जी राखी कर लिए या लड़ाई कर लिए, लड़ाई तो वैसे नहीं कर सकते, कमजोर आदमी असीं। वो आगे से मकामी है, गुंडा बंदा है। 92 तो रकबा साडे ना वालद दे ना होया, उत्थों शुरू हो के ते असीं कार्रवाई के थ्रू कब्जा अपनी पैराफोर्स के थ्रू कब्जा मिला। कब्जा होने के बावजूद उन्होंने दोबारा फिर हमारी जो काश्त थी हाल चला दिया, और हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, लेकिन इसका कोई हल FIR वगैरह हल नहीं है। वो दोबारा हमें धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी, ये मुतासरीन थे जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मशकूर हैं कि उनका बड़ा ऐसा इक़दाम है, जो पैराफोर्स, CCD और दीगर इदारे बनाए, पंजाब में क्राइम कंट्रोल हुआ है। और दूसरा जो है, इस पे कब्जा माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया है, इस पे वाकई खराज तहसीन बनता है। लेकिन लम्हा फिक्रिया और बदबख्ती हमारी अभी भी ये है कि जो माफिया है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता। बहुत शुक्रिया, सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। इकबालाबाद में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल आज भी जारी रही। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक गाड़ियां खड़ी रखकर मुकम्मल एहतजाज किया। हड़ताल के बायस दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक कम और कारोबारी सरगर्मियों में वाज़ेह कमी देखने में आई है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुताबिक ये एहतजाज हुकूक के मुस्तकिल हल के लिए किया जा रहा है, जबकि मकामी इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। एबटाबाद में हज़ारा इलेक्ट्रिक और बिजली कंपनियों की निजकारी के खिलाफ हज़ारा सर्कल में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में मुलाजमीन ने मुतालिबा किया कि कंपनी को आउटसोर्स ना किया जाए और दीगर सूबों से भर्तियाँ ना की जाएँ। उन्होंने कहा कि स्केल 1 से 15 तक मुलाजमीन की शदीद कमी है, जिसे फौरी पूरा किया जाए, जबकि
हज़ारा के हुकूक मकामी अफराद को तरजीही बुनियादों पर दिए जाएँ। रहीम यार खान में 2 शहरियों ने मस्जिद में कुरान पाक पर हलफ उठाते हुए शराब पीने और फ़रोख्त करने से तौबा कर ली। मज़ीद तफसील आपको दिखाते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद मलूक वाली में, जहाँ पर 2 मंशियात काम करने वाले अफराद ने अल्लाह के घर में आके तौबा कर ली है और मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे ही अल्लाह दे घर च आखना कुरान पाक ते मैं हथ रखदा। अज कोनू बाद मेरे ही शराब कने हर शै कने तौबा तैब ते गुजारिश ही है जो असे को कोई ना पुलिस तंग करे। असां अज कोनू बाद तौबा तैब थींदे पियूं, ना बड़े सूं ना पीसूं ते ना ही चीज़ विच हमसूं। जी मज़ीद हमारे साथ अल्लाह बचाए मौजूद हैं, ये भी हल्फ देना चाहते हैं। अल्लाह बचाए ना मेरा यार मंदा पढ़ रहा हूँ। आज को बाद मंशात को आज़ाद हूँ। असे को मेहरबानी करे, पुलिस तंग ना करे। असे को ढेर परेशान किए इवें आमदन पुलिस चाहिए वेंदी है भी। मेहरबानी करो। जी आपने इन दोनों का मौक़िफ़ सुना है, इन्होंने कुरान पाक पे हल्फ दी है। मज़ीद हम हमारे साथ मौजूद हैं इमाम मस्जिद साहब, उनसे हम बात करते हैं इस मुतल्लिक़। जी इमाम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज बहुत खुशी हुई, हमारे इन बच्चों ने, मोहम्मद जावेद ने और अल्लाह बचाए ने अपने गुज़िश्ता गुनाहों की शराब के मामले से तौबा कर ली है। अल्लाह के घर में खड़े होकर जमात को हाजिर करके कुरान पाक पर हलफ उठा लिया है। उम्मीद रखते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो बंदा तौबा करता है सच्ची तौबा वो ऐसा है जैसे कभी उसने गुनाह किया नहीं। आज इन्होंने मस्जिद में खड़े होकर तौबा कर ली है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको इस पर इस्तकामत नसीब फरमाएगा। हम ये अपने इदारों से और पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि इनको आइंदा जो है बिल्कुल तंग ना किया जाए। ये इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, अल्लाह ताला इनको अपनी तौबा पर कायम रखे और इस्तकामत नसीब फरमाए। जी आप इमाम मस्जिद साहब की बात सुन रहे थे कि इन्होंने तौबा कर ली है इलाका मुअज़्ज़िन और कुरान पाक पर हल्फ देते हुए जामिया मस्जिद में। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी, मैं हूं ज़फ़र इकबाल मज़ारी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहीम यार खान। जी रहीम यार खान में सर्दियों की आमद के साथ ही चौक शहबाजपुर में देसी गुड़ के स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे ज़फ़र इकबाल। जी इकबाल बताइएगा। मौजूद हैं चौक शहबाजपुर में, जहां पर सर्दियों की आमद है और इस मौके पर गुड़ के स्टॉल सज गए हैं। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं गुड़ स्टॉल के ओनर उस्मान भाई, उनसे बात करते हैं कि ये गुड़ कैसे तैयार किया जाता है और किस किस्म के आप गुड़ तैयार करते हैं। जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे यहाँ ना हर तरह का गुड़ तैयार होता है, देसी गुड़ होता है ये। हम शक्कर भी तैयार करते हैं, गुड़ गाजर तैयार करते हैं। इसके बाद होता है मेवे वाला गुड़। ये हर किस्म के गुड़ हम तैयार करते हैं और नेचुरल मटेरियल्स के साथ तैयार करते हैं। जैसे कि गौज़बान होता है, ये जड़ी बूटी होती है, वो डलती है इस गुड़ में। सकलाई होती है, वो भी जड़ी बूटी होती है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल होता है, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। टोटली नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। जी आप ये गुड़ वगैरह या जो भी मटेरियल आप तैयार करते हैं इनके थोड़ा रेट्स बता दें ताकि अगर लोग आपसे ख़रीदना चाहें या आना चाहें तो कहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। ये रेट्स जो हैं वो हमने बिल्कुल नॉर्मली रखे हुए हैं। होल सेल के हमारे रेट्स हैं, क्योंकि हम ये ख़ुद बनाते हैं तो इसलिए हम दुकानदारों को भी देते हैं होल सेल पे, और जो ग्राहक आते हैं हमसे फ़िज़िकली यहाँ पे ख़रीदते हैं हम उनको भी होल सेल रेट पर ही देते हैं। गुड़ का जो रेट है वो 180 रुपये से लेके 200 तक है, क्योंकि मिल ने जो है वो रेट बढ़ा दिए हैं गन्ने के। अब माशाल्लाह से ये भी खुशखबरी है आज की, 400 और 45 रुपये रेट हो गया है गन्ने का। अब गन्ना महंगा हो गया तो गुड़ मज़ीद महंगा होगा, पर फिर भी हम अपने जो ग्राहक हैं जो हमसे ख़रीदने आएंगे उनके लिए जो है वो 180 से लेके 200 रुपये तक रेट है। जी अच्छा, तो ये कमाद वगैरह आपने ख़ुद काश्त की हुई है या बाहर से ख़रीदते हैं? हम बाहर से भी ख़रीद लेते हैं और हमने ख़ुद भी काश्त की हुई है ज़मीन ठेके पर लेके, यानी कि रेंट पर ज़मीन लेके हमने ख़ुद भी काश्त की हुई है। और जो इलाके के इर्द गिर्द जो हमें गन्ना बेचने आते हैं मिल चलने से पहले, तो हम उनसे भी ख़रीद कर लेते हैं। जी आपने उस्मान भाई का इंटरव्यू सुना और आपने उन्होंने गुड़ के बारे में सब कुछ हर चीज़ बताई है। तो आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी, मैं ज़फ़र इकबाल मज़ारी हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहीम यार खान। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल, हमें अपडेट करे थे। सिटी प्रेस क्लब बूरेवाला में माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ।
आगाही सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, वकला, ताजरों, समाजी रहनुमाओं और माहिरीन माहौलियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ सलावत व नात से हुआ, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल, DSP राना इमरान, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर अब्दुल कदूस और दीगर शख्सियात ने माहौलियाती और ट्रैफिक कवानीन की अहमियत पर इजहार ख्याल भी किया है। मुकर्रीन ने ज़िम्मेदाराना शहरियत, कानून की पाबंदी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने आज़म ज़ाहिर किया कि वो साफ़, महफूज और कानून पसंद मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर में सदर प्रेस क्लब आसिफ अली ने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया है। वेल्सी में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल हरीपुरा के दौरे के दौरान मोहम्मद वखास और अंदलीब असगर ने स्कूल के तालीमी मयार, इंतज़ामी माहौल और तदरीसी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुआयने में क्लास रूम्स, बच्चियों की कारकर्दगी और असातिज़ा की मेहनत का भी जायज़ा लिया गया। अफसरान ने स्कूल इंतज़ामिया की काविशों को सराहते हुए कहा है कि मेयारी तदरीसी माहौल और असातिज़ा की लगन तलबा के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। कहूटा में आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर गाड़ी बेकाबू होकर दरिया जेलम में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस और मकामी अफराद के 4 घंटे तवील ऑपरेशन में अब तक 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा आयुषा जफर और पुलिस मौका पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओकाड़ा में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स पंजाब के सूबाई सदर मोहम्मद जाहिद अफजल जोया ने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम की जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि ड्राइवर्स दीगर सूबों की सरहदों पर दिनों तक खड़े रहते हैं, जिससे वक्त और लाखों रुपए का नुकसान भी होता है, जबकि जानो माल को भी खतरात लाहक रहते हैं। उन्होंने ड्राइवर्स के लाइसेंस के अजरा को आसान बनाने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहूलती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उनके मुताबिक ट्रेलर्स की बुलंद कीमत के बायस नुकसानात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो माशी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। अशय खुरोनोश की तरसील रुकने से महंगाई में इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा भी किया है। वहाँ पे जहाँ ड्राइवर बैठे हैं ना, वो उनका सब्र का पैमाना तो लबरेज हो चुका है। जो 8 दिन से पहले रास्ते में बैठे हुए हैं ना, वो वहाँ पे जहाँ कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे रोक रहे हैं, उनको बॉर्डर पे रोक रहे हैं। अभी एंट्री नहीं हो रही। सिंध, बलोचिस्तान, KP के कहीं से भी पंजाब में एंट्री नहीं हो रही। और पंजाब एक वाहिद सूबा है जहाँ से पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये तो बॉर्डर बंद हो रहे हैं, अभी कुछ हो गए हैं, अभी मंडियां बंद हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में ये सब्जी मंडी की जो तरसील है ये रुक जाएगी। तो जब ये रुक जाएगी तो ये लामहल्ला कैद की तरफ खुदा न खास्ता बात जा रही है। तो हुकूमत को समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे कि ये मुनासिब जो इक़दाम हैं वो करें, ऐसे ना करें। छांगा मांगा में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के फ़रोग़ के लिए छांगा मांगा योगा क्लब ने सालाना जंगल वॉक का इनेकाद किया, जिसमें पतोखी योगा फिटनेस क्लब ने खुसूसी शिरकत की। RI योगा इंस्ट्रक्टर खालिद जावेद ने योगा, वॉक और वर्जिश की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में बेहतरीन खाने का इंतज़ाम भी किया गया और शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। योगा क्लब छांगा मांगा हर साल एक सालाना वॉक करता है दिसंबर में। इस दफ़ा हमने पत्तों की फिटनेस क्लब को अपने साथ मदऊ किया, शामिल किया। उन्हें छांगा मांगा जंगल की ऑक्सीजन, बाहर तो बहुत ज़्यादा आलूदगी छा गई है, मगर जंगल में आकर आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पत्तों की फिटनेस क्लब का कि वो हमारे पास आज तशरीफ़ लाए और हमारे साथ उन्होंने वॉक की, और उम्मीद है कि आइंदा भी वो हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे मिलजुल कर इंशाल्लाह। तो मेरा नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को जो सारी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं, खुदारा बच जाएं इस चीज़ से। ये जो नींद के मसले हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी वजह से हो रही है। आप रात को खाना खा के सारी रात जागते हैं और सारी रात खाते रहते हैं फिर, और अपने आप को बीमारियों में मुब्तला कर लिया है छोटी उम्र में। आप पार्कों में निकलें,
जंगलों में जाएं, बियाबानों में जाएं, सैर के लिए जाएं, अपने आप को फिट करने के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। फजर की नमाज़ पढ़ लेता है जो बंदा और बाहर पार्कों में आ जाता है, जंगल में आ जाता है, उसे दुनिया की किसी मेडिसन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पैगाम है, पार्क आबाद करें, हस्पताल वीरान करें। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम राव की ज़ेर सदारत कायद आज़म डे, क्रिसमस और नए साल की तक़रीबात की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला अफसरान और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में तक़रीबात के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान, सफाई सुथराई, हेल्थ और रेस्क्यू कैम्प, सस्ते बाज़ारों और लोड शेडिंग फ्री इलाकों की हिदायत भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि 20 दिसंबर तक अपने प्लान जमा कराएं और चर्चिज़ के एतराफ़ CCTV निगरानी यकीनी बनाएं। उमरकोट में पुलिस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान ज़िला भर में ममनुआ गुटखा और शराब की खरीदो फरोख्त पर क्रैकडाउन किया, जिसमें बड़ी मकदार में ममनुआ अशिया बरामद और मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। थाना पथोरो में इरफान अली से 5 पैकेट गुटखा और 500 पूड़ियाँ बरामद हुई। थाना छोर में मुदन से 9 विस्की पैंट और नकदी 600 रुपये भी बरामद हुए, जबकि थाना ढोरो नारो में रानू से 17 विस्की पैंट बरामद हुए। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि क्रैकडाउन जारी है। कोटरी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामचोरों में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर अवामी खुली कचहरी मुनक़्क़िद हुई। खुली कचहरी में सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार, अरकान असम्बली और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। शहरियों ने पानी, ड्रेनेज, भर्तियाँ, मंशियात, सरकारी स्कूल्स, हस्पताल, सड़कों और शराब लाइसेंस से मुतल्लिक शिकायत पेश की। हुकूमती नुमाइंदों ने फौरी कार्रवाई, माजूर शहरियों के लिए सहूलियात और गैर कानूनी शराब लाइसेंस बंद करने के अहकाम भी दिए। SSP जामशोरों ने ज़िला में गुज़श्ता साल 700 मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों की ब्रीफिंग दी। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। जामचोरों में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अवामी खुली कचहरी मुनक़्क़िद हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताने इशफाक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामशोरो में, जहां पर खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है। जो यहां पर मेज़बान पहुंचे हुए हैं उनसे और आवाम के व्यूज़ लेते हैं। जी, यहाँ तक आ गए हैं, ये हमारे कायदीन की था कि आप जाएं और लोगों के बीच पूछें। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी महीना दस्तगी तक पहुँच सकते हैं, पर ज़ाहिर मुकेश साहब तक नहीं पहुँच सकेंगे, कोई DC तक नहीं पहुँच सकता, कोई SSP तक नहीं पहुँच सकता। हमने सबकी बातें सुनी हैं और बहुत सी चीज़ें तो आपने देखा होगा यहाँ बैठे ही हमने सॉल्व की हैं कि हम ये कर लेते हैं। बकाया चीज़ें हमने जो इस मरतबा मैं गुजरे टाइम भी जब आई थी तो कुछ भी हो, यहाँ छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो बहुत से काम थे जो मैंने किए थे, मगर हमारे पास एक मसला होता है कि वो जिनके किए होंगे वो आज नहीं आए, आज फिर वो आए होंगे जिनके काम नहीं हुए। तो ऐसे भी थे कि गुजरी, ये नहीं कि गुजरे जो खुले कचहरी थी उसका कोई रिजल्ट नहीं था, रिजल्ट था वो जो मेरी हैसियत के अंदर था। मैंने उसके बाद मेरा गुल हसन है और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वापस आए। पुलिस स्टेशन कौन सा है? चौकी। टेलीग्राफ। देखिए, सबसे पहले तो ये खुली कचहरी जो है वो हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी, अदी फरियाल टालपुर और CM सैयद मुराद अली शाह के अहकाम की रोशनी में हो रही है, जहाँ पे मिनिस्टर भी मौजूद है और अवामी नुमाइंदगान भी मौजूद है और बाकी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे इस खुली कचहरी में आप मौजूद हैं। हम गुज़श्ता 3 से 4 घंटों से आवाम को भरपूर ये मौका फराहम किया गया है, वो आए यहाँ पे अपने अपने इनफरादी और इज्तिमाई जो भी मसाइल हैं उनको रखें। और जी डॉक्टर साहब, आवाम का कहना है कि खुली कचहरी सिर्फ बातों तक महदूद है, इससे ऐसी खुली कचहरी पहले भी हो चुकी हैं, उस पर अमल नहीं हुआ, इस पर अमल होगा कि नहीं होगा? जी सर, मेरे ख्याल में जो खुली कचहरी एक जो इसके बाद होने वाली खुली कचहरी है उसका तसलसल है। तो यहाँ आज जो जितने भी मसाले में मैंने कहा ना, कुछ ऐसे तो मसाले जिस पे बर वक्त अहकाम भी जारी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाले जिस पे हम एक्शन लेंगे और पूरा हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जितने भी लोगों की कंप्लेंट है या जितने भी लोगों ने लिख के जो एप्लीकेशन दी हुई है वो हम उस पर
उनको जो ना जो कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट हम फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद वो मसाइल जो हल करने वाले हैं वो हल करके जो भी बंदा जिसने ये कंप्लेन की उस तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। लेकिन पगार छोड़ो करी जे वेंडर न तो दे अदा 27 जिला वेंडर करे हो, उमरकोट करे हो, थरपारकर करे हो, तो के वेंडर को तो नॉन टेक्निकल मानो छो यार वो टेक्निकल में यार 6 महीना के घर में पगार न चे वो अभी 3 महीने जे क्वार्टर ते दिए उन दा भी आशा थी तो करे बगैर किताब दो उन मानू केड़ी को हालत थी वाइन शॉप सरेआम खुली ॾिनी हुई आहे तव्हां इन मां अंदाज़ हणो त हिन ज़िले जे अंदरि केतिरी न मंशियात हलंदी बाद में खुलिया पिया हिन जाम शहर में तालीमी इदारा नौजवान नस्ल खे तबाह छो था करण जा मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुसि महिरबानी खुदा डीसी साहब खे, SSP साहब खे, आज साहब खे, डॉक्टर सिकंदर शोरो साहब खे बाबा इहो भूतो बंदि करायो। असां इहो कंहिं बि सूरत में क़बूलियत कंदासीं, असांजी नौजवान नस्ल तबाह थी रहे त असां ग़रीब न मारियूं, असांखे धक लॻे थो, बीमार थींदासीं, कुझु पेट में सूर पियो त असां DHQ हॉस्पिटल वेंदासीं। DHQ हॉस्पिटल ज़िले जी हेडक्वार्टर आहे, अॼु MS ते वेठो आहे। आज सामरा साहब ऐं चैलेंज कयांसि थो, अॼु कमेटी हींअर ठाहियो, हींअर मूंसां गॾिजियल जेकॾहिं हुते एक्सरे न बि वञे, उते मेल जो अल्ट्रासाउंड न बि वञे, उते एम्बुलेंस न बि वञे, उते पीअण जो पाणी न बि वञे त 303 जी चोरी जी सज़ा आहे। तो हिते कुछ भी न डेट में अगर दाव पे क्यों अस्पताल अंदर कोने किलो जी करप्शन चला किलो में सोलर प्लांट तक सब उते की तेरी रैली पर निकल तब हम करप्शन पाग ये क़यामत की निशानी है। बदीन और गिरदोनवा में रात से शदीद धुंध का राज है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों और मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट टंडू मस्ती कौमी शाहराह पर काजी अहमद से कश्मीर जाने वाली बारातियों की बस धुंध के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में ख़वातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें मौका पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। टंडू मोहम्मद खान में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंझार ने अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरियों से खिताब करते हुए कहा कि ये इक़दाम शहरियों से बराह रास्त राब्ते को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। आना हुआ है, CM साहब ने मुकर्रर किया मुझे कि यहाँ पर खुली कचहरी करूँ, और ये हमारी पीपल्स पार्टी का एक रहा है तरीक़ेकार के हर मिनिस्टर शहीद भुट्टो का दौर हो या बेनज़ीर साहबा का दौर हो और या फिर अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, ये उनकी क़यादत है। तो ये हमारा आने का मकसद ये है कि हम लोगों के मसाइल सुनें और यहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ही उनका हल करके दें। जो फिलफोर हो सकते हैं उनको फिलफोर करें, जो कि जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी और भी ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर क्रेडिट कॉलेज का वो इशू है। तो वो मैं इंतज़ामिया को वैसे भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे प्रॉपर ब्रीफ बना कर देंगे ताकि हम उस पर अमल दरामद कर सकें। और कुछ ऐलानात भी मैंने यहाँ किए हैं, जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नहीं है बनी हुई, तो वो हम ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच भी बना रहे हैं। यहाँ काफ़ी डिमांड हुई हमारे नौजवानों की तरफ से कि जो पास हुए हैं बच्चे, लेकिन वो अभी मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट थी उसमें नहीं आ सके, तो उनको भी हमने देखना है कि उनको जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो हम दे सकें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ज़िला हैदराबाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। यूसी सतह के उम्मीदवार राब्ता मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स और बरादरियों से मुलाकातों के ज़रिए वोट हासिल करने के लिए मसरूफ़ हैं। डिवीज़नल सदर अकील अहमद ने कहा कि पार्टी में जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने के लिए यूसी सतह पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, ताकि अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें और इलाकाई मसाइल भी हल हों। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज उमर फारूक खानजादा ने कहा कि पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन 12 दिसंबर को मुनक्किद होगा। मुस्लिम वेमेन लीग में भी ख़वातीन के वोट और पोलिंग स्टेशंस पर खिदमत के लिए सरगर्म है। नौशेरा फिरोज में धुंध के बायस कंडियारू कौमी शाहराह पर 3 गाड़ियों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में ट्रॉलर उलट गया, जिसमें 200 से ज़ायद भेड़ और बकरियां हलाक हो गई।
हादसे में गाड़ियों में सवार अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक हादसात कौमी शाहराह पर मरम्मती काम और एक सड़क पर रवानी के बायस मामूल हैं। जमात इस्लामी लाहौर ने बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ 21 दिसंबर को प्रेस क्लब लाहौर के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट धरने की क़ियादत करेंगे। पार्टी ने जोन इंचार्जेस और कारकुनों को भरपूर शिरकत और राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत भी जारी की हैं, जबकि हर जोन से 25 से 50 अफराद की लाजमी शिरकत का फैसला किया गया है। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।